I think all of us who have been practicing meditation, there are different forms of meditation, guided or ones which are not guided. And guided meditation is easy one, and it is the majority of the people can do it. The other meditations are basically focusing on your breath. So various forms of meditations are available. We can definitely say that people who do 10 minutes meditation and just concentrate on their breath without thinking anything, because once you concentrate, mind एक टाइम पे एक ही जगह लगता है, 10 जगह नहीं लग सकता. तो जब एक टाइम पे वो लगता है तो आप देखेंगे कि उसको आप नोट कर लिए डेट को, और आप अपनी सोच को, अपनी हर चीज को देखिए. You'll find magical effect in yourself in 15 days time. As you become mature into it, it will definitely have a much larger effect. Just call Dr. Shakuntala. Ma'am, called. Okay. Dr. Manju Parikh, you want to speak something? Thank you, madam. I'm not very long in practice meditation, but when I went there at the BK's Mount Abu, so I learned it, and I feel guided meditation is easier to perform, but you have to concentrate a lot. You have to concentrate your energy at one point and at your center of your forehead, and just think about and just leave yourself. Whatever comes in your mind, and let it go. Don't try too hard to focus on anything. So when you want to focus much, then distractions become much more. So better to leave it and just concentrate, and any form. But if you are regular and doing the same thing repeatedly at the same time, you become habitual, and you definitely connect with the God. That I feel it, and it gives you immense energy and keep you very calm and accept the things, whatever is in your life. That is very important. You accept the thing, you surrender to the God, and then everything becomes very easier. Whatever comes in your life, and you are able to overcome it. That is my experience in life. No, very well said. It is like this. बस खाली आप जो फैकल्टी है अभी मैडम जब कराएंगी तो वो आपके आंख कान दोनों खुले रखेंगी, और आंख और कान दोनों खुले रखेंगी, बट खासकर अपना फोकस करिए कि क्या मैडम बोल रही है, और आपको उसके साथ ही बंधे रहना. You have to be present. That's what the whole thing is there in guided meditation. या किसी भी मेडिटेशन में. और मेडिटेशन से धीरे धीरे आप उस साइलेंस में जब पहुंच जाते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है, आपका इमोशंस, आपका मन, माइंड, सब कुछ हील होने लगता है. बीमारियां चली जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जिनको हाइपरटेंशन है, और यहाँ तक कि बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं, डिप्रेशन खत्म हो जाता है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें एक बहुत शांति की भावना महसूस होती है. Ma'am, have you tried to invoke Kundalini? How you feel about it? I have not experienced it, but how someone feels when he wakes up his Kundalini or something. But it's very. हमने ओशो का जब वर्कशॉप्स करी थी तो उनका मेन एम है आपको समाधि में ले जाना. क्या हो जाता है ज्यादातर मेडिटेशन में आपको ड्युअलिटी मेंटेन रहती है, मतलब यू फील दैट यू आर समवन एंड समबडी एल्स इज आल्सो समवन, जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं. बट समाधि में इट इज वन. So once you find that you are one, samadhi is the most healing power it has, and people who go there find very easy. And samadhi को तो आपके लेट के भी कराते हैं और बिठा के भी कराते हैं. मेनली बासी के फाइनली जो फाइनल स्टेज है उसमें लेट के ही कराते हैं. And the experience is cannot be described. It can be only felt, डॉक्टर दिव्या क्या हो गया मैडम को? मैम वो कह रही नेटवर्क में 2-4 मिनट और लगेंगे,
और तब तक के अगर आप कहें तो मैं शुरू करा देती हूँ with your permission. तो सब लोग अपने ऐनक जूते उतार दें, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके एक लंबा सांस अंदर, पेट के कोने कोने तक सांस पहुंचे और एक गहरा सांस बाहर। अपने मन को श्वासों की ओर लगाएं। एक बार फिर लंबा सांस अंदर, सकारात्मक ऊर्जा आपके कण कण में पहुंच रही है और सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर। फिर लंबा सांस अंदर, मन की कोने कोने को साफ करता हुआ, मन को स्नान करता हुआ, विचारों को सुंदर बनाता हुआ और सारे गंदे नेगेटिव विचार बाहर। रिलैक्स योर बॉडी, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें, माथे को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर जॉ मसल्स, रिलैक्स योर फेस मसल्स, गर्दन, कंधे, कमर, बाजू, हथेलियां सब विश्राम स्थिति में पहुंच रही हैं। टांगे, पैर, टोस सब रिलैक्स हो रहे हैं। मन की ओर देखें, शायद विचारों में भी विश्राम आ रहा है। विचारों को देखें, देखें और जाने दें। Just be an observer to your thoughts. Don't get entangled in the thoughts. साक्षी भाव से देखें। और अब माथे के बीच, भ्रुकुटी के बीच पॉइंट ऑफ लाइट जो कि आप स्वयं हैं, उसकी ओर ध्यान दें। अपने से मिलें। आप एक शांति की झील हैं, प्रेम का फव्वारा है। आप परमात्मा की सबसे यूनिक क्रिएशन है। You are the favorite child of God. You are a part of God. You have all the qualities of God. Just try to self-discover your qualities of unconditional love, power, purity. This is what you are. Just feel the presence of the power. धीरे धीरे वापस आए भौतिक शरीर में। हथेलियों को रख लें और अपनी प्यारी प्यारी आंखों की पुतलियों पे हथेलियां रखें। पूरे शरीर पे इस एनर्जी को फील करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। जब भी आप गहरी सांस लेंगे
बहुत लोग अनुपात बताते हैं, जब आप गहरी सांस लें 4 सेकेंड, रोकें 4 सेकेंड, छोड़ें 4 सेकेंड में और फिर स्टॉप करें 4 सेकेंड। 4 4 4 4। जब आप सांस गहरी लेंगे तो आपकी नेवल बाहर की तरफ जानी चाहिए। जब आप सांस छोड़ें तो आपकी नेवल रीढ़ की हड्डी की तरफ पिचक जानी चाहिए। तो हम लोग आप सिंपल सा उच्चारण करेंगे ओम का। यहाँ पर ओम 3 शब्दों से बना है, बट हम इसमें 2 में ही इसको कंसंट्रेट करेंगे। आप गहरी लंबी सांस लेंगे, ओ बोलेंगे और फिर माँ बोलेंगे। सो आप एक बार मैं करती हूँ और आप मेरे साथ करिएगा। गहरी लंबी सांस लीजिए, आंख बंद करिए, थोड़ी आप अपनी ऊपर तरफ से कर दीजिएगा। गहरी सांस लीजिए। आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। गहरी सांस। फिर गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान नेवल पर। फिर गहरी सांस। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको जानने का कि आप करेक्ट गहरी सांस ले रहे हैं कि नहीं। आपका पेट बाहर जाएगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओ और माँ में आधा आधा करेंगे तो आपकी किस तरह से नेवल बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से चिपक जाती है। और आप 10 से 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आप ट्रांस में पहुंच जाएंगे। इसमें इतनी पावर है इस गहरी लंबी सांस में, गहरी लंबी सांस में। मैडम एक बार डॉक्टर मैडम से बात करो। Yes, ma'am, she has come. Thank you so much, ma'am. Come. And over to you, Dr. Shakuntala Kumar. Madam is going to tell us guided meditation.